Dear students, good morning. Today I am going to teach you notice writing. A notice is a formal means of communication. It is very important form of communication used by individuals or organizations. It conveys information about functions, events, and occasions that had happened or is about to happen. First of all, I am going to tell you types of notice. Generally, it has 6 types. Notice has 6 types. Number first is notice for meeting. Number second is notice for events. Number third is notice for lost and found. And number fourth is notice for appeal or warning. Number 5 is notice for seminar, workshop, debate, etc. And number 6 is notice for change of name, residence and company, etc. Now you have to keep in your mind some important tips. There are about 11 important tips while you are going to write notice. You should keep these 11 points in your mind. Number first is use easy and effective language. That is the most important thing. You have to always use effective and easy language. Second is always use third person pronoun. While you are going to write notice, always use third person pronoun. Third, I, me, mine, you, your should not be used. You have not to use second person pronoun or the first person pronoun. Fourth is use present or future tense. While you are writing notice, you have to use only present or future tense. You cannot write your notice in past tense. The next important thing is include only important points. Include only important points. And next point is follow the word limit. Generally, you have to write the notice in about 40 to 50 words. You have to follow the word limits. And the next is it must attract the reader's attention. Your notice should be in such a way that it should attract the minds of the readers. And the next is sentences should be short, grammatically correct. And the next important tips is add only relevant information. You have to write only relevant informations. You have not need to write unnecessary informations. The next is it must inform the readers about what, when, who, whom, etc. The most important thing that is the put your notice in a box. You have to write your notice within a box. Now I am going to define it in Hindi also. सबसे पहली बात है कि नोटिस जो आपका होता है यह कम्युनिकेशन का, बातचीत का सबसे उत्तम माध्यम होता है, औपचारिक माध्यम होता है। इसको जो नोटिस को व्यक्तिगत रूप से भी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी यूज किया जा सकता है। हम जब नोटिस को लिखते हैं नोटिस में, तो इसमें हम फंक्शंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ओकेजन्स आदि के बारे में जो घटित होने वाले हैं या हो रहे हैं उनके बारे में सूचित करते हैं। ये नोटिस के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है मीटिंग के बारे में हम नोटिस लिखते हैं, इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, किसी चीज़ को खोया है या कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं, खोया हुआ पाते हैं, उसके बारे में नोटिस निकालते हैं, अपील करते हैं किसी चीज़ के बारे में या फिर वार्निंग करते हैं, उसके बारे में नोटिस लिखते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट आदि के बारे में लिखते हैं। और फिर
जो मोस्ट अगली बात होती है वो क्या है कि चेंज ऑफ नेम रेजिडेंस। हम अपने नाम को जब चेंज करते हैं, रेजिडेंस को बदलते हैं या कंपनी को बदलते हैं आदि के बारे में लिखते हैं। हमने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप माइंड में रखें जब आप नोटिस को लिखने जा रहे हों। सबसे पहली बात है कि आपकी जो भाषा है, जो शब्द आप प्रयोग करने जा रहे हैं, जो वाक्य आप बनाने जा रहे हैं, वो आपका सरल और बहुत ही प्रभावी होना चाहिए। अगला पॉइंट इसका है कि आपको हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, यानी मी, आई, मी, माई और यू, योर आदि प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना है। अगली बात है कि आपको अपना जो नोटिस लिखना है वह या तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे या फिर फ्यूचर टेंस में आप नोटिस को लिखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं रिलीवेंट हैं, आप सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट थिंग को उस नोटिस में ज़रूर शामिल करें। ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपका छूट जाए, कोई इंपॉर्टेंट बात कहने से रह जाए, इसलिए आपकी सारी चीज़ों को नोटिस में समाहित करना चाहिए। और वर्ड लिमिट, अगली बात है वर्ड लिमिट की। वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स होती है नोटिस राइटिंग के लिए, इसलिए नोटिस को, वर्ड लिमिट को जरूर फॉलो करें। 40 to 50 वर्ड से ही आपका होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी नोटिस आप राइट करें वो रीडर्स के मस्तिष्क को, माइंड को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। आपका सेंटेंस, जो वाक्य है वो छोटे होने चाहिए और साथ ही साथ व्याकरण की दृष्टिकोण से शुद्ध होने चाहिए। आपको अपने नोटिस में जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो तर्कसंगत इंफॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं हैं, उनको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। आपका जो नोटिस होता है वह कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन आदि का एक प्रकार से उत्तर होता है, उसका एक प्रकार से उत्तर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नोटिस बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। बॉक्स के बाहर आपका नोटिस अगर है तो वो रॉन्ग होगा और 0 मार्क्स मिलेंगे।